the students who go to top IIMs, they pay 25 lakh rupees approximately for top MBA colleges, but only 27 to 30% of them actually end up getting 20-25 LPA kind of salary or kind of pack. अब हम एक रिपोर्ट देखें which is on Twitter, which is like कि एक IIM त्रिची में एक सर ने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 15% बैच इज अनप्लेस्ड. 25 लाख रुपीज़ है विच इज़ दी एंटायर सेविंग ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर दिस. मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ तो मैं किसको हायर करूँगी जिसके पास एक्सपीरियंस. अगर आप किसी को चाहिए इतना पैकेज, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही रही हूँ, देन आई लुक फॉर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इजंट इट? देन व्हाई विल आई लुक फॉर फ्रेशर जिसको मैं ट्रेनिंग भी दूँ, पैसे भी इतने हाई पैकेज दूँ? इट डजंट मेक सेंस. सीखो मतलब वो जब तक आपकी एक फाइनल प्लेसमेंट नहीं लग जाती है स्टूडेंट्स आफ्टर दैट कॉलेज, दैट MBA college, you have to give your best. The path is very long, there's no shortcut to success. One thing you have to keep in your mind very, very clearly. Hi everyone, this is Deepika Avasthi, your VRC educator. Today the topic we are discussing is extremely important. Yes, it's not just about ROI from top MBA colleges. See kitni fees di, kitni placements mili. Nahin, it's more than that. We need to discuss some really important pain points so that you can take or make educated decisions for your career and choose a right college and not just chase a brand कि भाई मुझे तो IIM टैग ही चाहिए और इसीलिए IIM जाना है, प्लेसमेंट गई भाड़ में. You will say no, placements तो मुझे चाहिए, like obviously. So then accordingly take the decision, students. So today the session is more about how to take the right decision while choosing an MBA college rather than simply discussing the ROI. Now one thing we need to understand, it's a bitter truth that all of us pay, the students who go to top IIMs, they pay 25 lakh rupees approximately for top MBA colleges, but only 27 to 30% of them actually end up getting 20-25 LPA kind of salary or kind of package. This is one thing, and then उसमें components होते हैं, ESOPs, performance bonus, variables, that we'll definitely discuss later. But the point is how exactly take the best decision, since it's not just about the MBA fees actually, isn't it? जो 25 lakh rupees है, which is the entire saving of a middle class family of the students who are going for this, एक वो चीज़ नहीं है. It's also about when you go for this, you actually spend 20,000 rupees approximately to fill all the forms, right? CAT, CMAT, ZAT, SNAP. फिर कई बार वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो उसके भी अलग से हम एक टोकन मनी पे करते हैं जिसका कभी रिफंड मिलता है कभी नहीं. सो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, energy first of all wasted or in a way spent on preparation, and then money as well, a lot of money before you actually join an MBA college. उसके बाद भी there is no guarantee कि first of all you'll get a tier 1 college or not. In case you get it, there's no guarantee that whatever money or fees you have paid them उसका exact आपको proper return मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So how exactly you need to judge colleges? ठीक है, tag is definitely important, but exactly tag के अलावा और क्या क्या factors important है कुछ examples के basis पे हम समझेंगे. The session is more on the more solution oriented. It's not about blaming कि colleges ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. This is more towards awareness and taking right decision for our careers. So अब हम एक रिपोर्ट देखें विच इज़ ऑन ट्विटर, विच इज़ लाइक कि एक IIM त्रिची में एक सर ने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 15% बैच इज अनप्लेस्ड, राइट? अगर IITI डेटा देखें 23-25 का जो लेटेस्ट बैच है मतलब वो अनप्लेस्ड है, एंड उसमें से 27% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 20 लाख पैकेज, उनको ही 20 या 25 लाख पैकेज मिला है, अदर स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉट इट. दिस इज अ डिटेल्ड स्टडी. Now what does that mean? That means if you're going to, even though you're getting an IIM tag, there's no guarantee that you will get a very good package. Second point, okay, you see every story has two sides. Maybe colleges are trying to give everyone the good placements, but फिर भी नहीं हो पा रहा है, right, for any reason. So if you're someone who will think कि okay, I'm getting into an IIM, मुझे एक IIM tag मिल गया, बस अब हो गया, अब ठीक है, I do not want a best package, मुझे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है because my profile has been average. यहाँ पे मैं कम मेहनत करूँगा तो mediocre package तो मिलेगा ही because I'm in IIM, isn't it like that? तो हो सकता है you end up getting nothing. So you have to keep trying hard, you have to try your best even when you get the college and stay in top 10%, तभी placement हो पाएगा students, right? तो हो सकता है जिनकी placement नहीं है for various reasons, they don't have right profiles, राइट परफॉर्मेंस इन द कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, बट good things don't come easy. That's what we need to understand. Similarly, good placements, if you are in your life at a better place than others, you must have worked at least 2x or 3x hard than them. That's what you need to understand. So simply blaming कि okay I paid so much fees,
तो मुझे प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, तो फिर तो हमें एचआर कंसल्टेंसी को पे इतने पैसे दे देने चाहिए, वो आपको इतनी अच्छी जॉब दिलाते, फिर कॉलेज जाने की ज़रूरत ही क्या, अगर पैसे के बदले में जॉब मिलती है। तो हमारे भी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा, लाइक कॉलेज हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर वी लर्निंग, आर वी रियली एलिजिबल फॉर गुड ब्रांड्स, गुड कंपनीज, कैन वी रियली हैंडल देयर बिजनेस, जिस रोल के लिए वो हमें हायर, जो मुझे पैकेज चाहिए 25-30 लाख का, उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन होती है उतने मेरे में स्किल्स हैं कि नहीं है, क्या बिफोर ज्वाइन द कॉलेज डिड आई बॉदर टू ज्वाइन एनी सर्टिफिकेशन, एनी इंटर्नशिप, कुछ भी ऐसा मैंने कोशिश की अपने आप को अपस्किल करने की, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इजंट इट स्टूडेंट्स? नाउ yes I agree that fees is still too much and there is no guarantee, there is no outcome कि प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, एंड जो फीस वो चार्ज करते हैं लाइक 25 लाख, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस, उतनी ऑलमोस्ट लाइक वी अंडरस्टैंड कि सब एक फैमिली की कई बार सेविंग्स होती है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए 90% स्टूडेंट्स हु गो टू टॉप आईएम्स टेक लोन्स, राइट, ये तो बिल्कुल फैक्ट है. So this is one thing, that means we have to not just give our best in CAT exam or whichever exam we are getting through, like say ZAT ke through Excel, right, we have to be top performers in college as well, and the time you get between your exam results and joining college, you have to upskill yourself by taking some certification, by doing some internship, or if you're doing a job, वहाँ थोड़ी चीज़ें सीखो, मतलब वो जब तक आपकी एक फाइनल प्लेसमेंट नहीं लग जाती है स्टूडेंट्स आफ्टर दैट कॉलेज, दैट MBA कॉलेज, you have to give your best. The path is very long, there's no shortcut to success, one thing you have to keep in your mind very clearly, right? Now second thing, जो इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था कि IIM काशीपुर ने ऑप्ट आउट फॉर्म निकाला, दिस इज ऑप्ट आउट है कि लेफ्ट आउट है, लाइक यू नो दैट दे विल नो बेटर, अ लॉट ऑफ controversy has happened, I am not the first one to talk on this, I'll not be the last one to talk on this topic, but again the point is when you anyone next to next year will go for the admission to this college, वो ब्रोशर में कितना सक्सेस रेट है वही होता है हर बिजनेस का, ना कि सिर्फ एक कॉलेज का, फेलियर रेट कितना है वो कोई भी नहीं बताता है, लाइक हु एम आई टू ब्लेम अ कॉलेज, एक्चुअली हम किसी बिजनेस में भी देखते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी अगर हम देखते हैं तो हमारा सक्सेस रेट कितना हुआ कि इतने कॉलेज तो हमने 20%, 30%, 10% का सक्सेस रेट आया, और देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सी 2.5 लाख पीपल टेक कैट एग्जाम्स, उसमें से 5 to 10,000 people every year get into top college. That means हर कोचिंग का जो रिजल्ट है वो मिनिमम ही है, whoever joins them उसमें से 80%, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करो 80% का रिजल्ट आता ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी, isn't it? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल anyone who is doing a business, be it MBA colleges, be it anyone, it's not like I'm listening to 4 people and then taking a decision. I need to listen to myself first, then accordingly पहले तो मुझे डिसाइड करना मुझे MBA करना है कि नहीं करना है. My goal is to get a high pay job, or my goal is to do MBA and get into corporate kind of jobs because that's my interest. अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है, आपकी फर्स्ट जॉब कम लगी या नहीं लगी, धीरे धीरे मिल ही जाएगी, वो तो आपका जो फर्स्ट ईयर में जो आपका गोल अचीव नहीं हो सेकंड थर्ड ईयर में हो जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग. बट इफ योर गोल इज ओनली टू गेट अ हायर पैकेज जॉब, you have to work more on your skills rather than a degree certificate, students. That's the focus, or that's the thing you need to first of all look at. Placements any which ways are going down in all the colleges. The only like mistake this college did है उसने opt out form दे दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा controversy में आ गया. देखो opt out form नहीं देते तो just like everyone else इनका नाम इतना भाई नहीं highlight होता, तो that's the only thing. तो ऑफ कोर्स भाई ऐसी चीज़ें कोई भी कॉलेज नहीं बता रहा है, कोई भी बिजनेस नहीं बता रहा है, एंड दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दैट्स हाउ ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस वर्क, राइट, नॉट जस्ट दीज कॉलेजेस, कि हर कोई अपनी पॉजिटिव साइड ही दिखाएगा, राइट, और कभी कभी ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, नाउ मुझे ऐसे कॉलेजेस पे टारगेट करना है जहाँ पे मेरा ROI के अलग से, ROI इज नॉट जस्ट 25 लाख फीस, ROI इज आपका कोचिंग का फीस, आपके एज ई सेड आपकी वेट लिस्ट का जो आप टोकन मनी देते हो, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जो आप स्टडी मटेरियल खरीदते हो लाइक बिफोर ज्वाइनिंग दीज कॉलेजेस प्रेपरेशन के लिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस लेते हो, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. तो ROI तो इन अ वे शॉर्ट टर्म में किसी का भी नहीं निकलता है, अनलेस दैट पर्सन इज गेटिंग 1 crore ऑफ सैलरी और समथिंग, पर उन स्टूडेंट्स का देन इतना अच्छा लाइक नो लाइक रेज्यूमे होता है, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस होता है कि दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. 99% पीपल डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ पे पैकेज. एक और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेबी आइम्स का, कि स्पेशली कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे त्रिची, नागपुर, अमृतसर, बोध गया, राइट, उनमें तो काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है. इतनी प्लेसमेंट की प्रॉब्लम न्यू आइम्स में क्यों हो रही है, राइट, कि जिस तरह के स्किल्स, द काइंड ऑफ लाइक प्रोफाइल कंपनी इज लुकिंग फॉर वो नहीं है. Market is saturated, more people are already into this market when the good placement used to happen 5 to 7 years back. अब वही लोग अभी भी काम कर रहे हैं, they have not retired yet, so companies are working. Secondly, there is a 2-year MBA and there is 1-year MBA. So 1-year MBA
are done by those students or those people who already have 4 to 5 years of experience. So if I am an employer, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, तो मैं किसको हायर करूँगी? जिसके पास एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी को चाहिए इतना पैकेज, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही रही हूँ, देन आई लुक फॉर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इजंट इट? देन व्हाई विल आई लुक फॉर फ्रेशर जिसको मैं ट्रेनिंग भी दूँ, पैसे भी इतने हाई पैकेज दूँ? इट डजंट मेक सेंस। आर यू गेटिंग दिस? सो मुझे अब इसका यही सोल्यूशन है कि आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, दैट इज़ वन थिंग। फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू डू MBA, यू हैव टू डू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, नॉट फॉर द टैग बट फॉर द प्लेसमेंट्स। दैट इज़ योर वन थिंग। हमेशा लेटेस्ट, एक बार नाम बन के तो लाइफ टाइम वो पर्सन या वो ब्रांड या वो कॉलेज ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? एवरी ईयर थिंग्स चेंज, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर नेक्स्ट ईयर, मे बी इट विल नॉट, बट यू हैव टू एवरी ईयर चेक द, नॉट जस्ट द वेबसाइट, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल राइट good reports, but you have to check basically the latest reports from various sources कि actually कितना placement हुआ है, isn't it? Actually, और इस placement कितनी fees है, कैसा college curriculum है, that in case somehow I'll be left out or opt out in some colleges, can I still get a placement or a job if I apply like on my own? मैं 10 जगह resume दे के आऊँ, तो क्या मेरे resume वो skills है, वो बात है कि मुझे कोई ऐसी कर ले? मेन होता है जॉब मिलना किसी कॉलेज के थ्रू मिले या मैं अपने खुद के दम पे, isn't it like that? So that, सो क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स है कि एक तो मैनिपुलेशन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मीडियन एवरेज स्टाइपेंड्स है, जो वेबसाइट में लिखा होता है एग्जैक्टली वो सैलरी नहीं होती है। बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, राइट? फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफर्स फॉर वन स्टूडेंट, एडिंग इंटरनेशनल ऑफर्स, इन्फ्लेटिंग CTC। इन्फ्लेटिंग CTC का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू, ठीक है, यू पे 25 लाख रुपीज़, दे विल नाउ गिव यू 20 लाख या 18 लाख का पैकेज फॉर एग्जाम्पल। यू विल बी फाइन कि ठीक है, आफ्टर 1 or 2 years आई स्विच द जॉब एंड आई समहाउ बैलेंस इट। अब लोन ले लिया है जो है, that I have to take and get ahead, right? That's what happens. So now with your compensation, although they are saying 25 lakh or 30 lakh package, so you will be dividing it by like by 12, तो मतलब 2 लाख मेरा पैकेज आएगा, बट एक्चुअली आपको इन हैंड 75 to 85,000 ही आता है इन मोस्ट केसेस, बिकॉज योर एंटायर पैकेज विल कंसिस्ट ऑफ ग्रेट्युटी, PF कॉन्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस बोनसेस, ESOPs, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड मैनी, बहुत सारे से दूसरे बेसिकली आई वुड से कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कभी मिलते भी नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से परफॉर्मेंस बोनसेस 80% लोगों को नहीं मिलता। आप लोग बोलते हैं तो बहुत गलत है, इन्फ्लेटेड सैलरी देते हैं। सी दे आर ट्राइंग टू से कि दिस इज मैक्सिमम वी कैन गिव, ऑल्सो दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल्स आर जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस और इंसेंटिव्स। तो अब अगर हम भी आप भी फ्रेशर हो, आपकी भी मिस्टेक नहीं है कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग इतना अच्छा आता नहीं है, पर उन्होंने बोला इन केस आपने कर ली, इन केस यू वेरी टैलेंटेड, विल गिव यू द एक्स्ट्रा मनी, पर वो आपसे हो नहीं पाया, तो यू कांट फील बैड कि अरे आई वॉज प्रॉमिस। नो, यू आर प्रॉमिस दिस मच मनी, उसमें से ये फिक्स्ड है और ये है, पर एक बार वो टोटल बताएंगे इतना मैक्सिमम वी कैन गिव यू, देन अगेन आप इसमें से कितना ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर hard work, performance, talent, everything is on you. We'll see your 1 year performance and accordingly next year performance review होगा, आपको accordingly आपको raise मिलेगा। तो आपकी बेस सैलरी पे आपको ध्यान देना है। सोल्यूशन मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी आपको कोई मिलता है, आपको ओवरऑल CTC पे नहीं ध्यान देना है, आपकी बेस सैलरी कितनी है। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू या कोई ऑप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, isn't it? जो है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योर हेड डाउन till you get what you want, right? तब तक। और अगर आपके पास ऑप्शंस है, इफ़ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी, इफ़ यू हैव सम नेटवर्क, गुड नेटवर्क कनेक्शन, एंड यू थिंक बेस सैलरी मुझे से ज़्यादा मिल सकती है, तो स्विच करो, राइट? एज सुन एज फास्ट। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। ना अभी प्रोफेशनल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन? तो प्रोफेशनल्स सजेस्टिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर नेट पे, एक्सक्लूडिंग ऑल द वेरिएबल कंपोनेंट्स, जो भी वो लोग बोल रहे हैं, विल गिव यू दिस एंड दैट, बिकॉज दैट विल पे योर बिल्स, दैट विल हेल्प यू टेक रिस्क्स or even plan to switch, isn't it? Because sometimes when we plan to switch, sometimes one HR knows another HR and then your career can be at risk, can be at jeopardy. तो थोड़ा सा अपने को लगता है, थोड़ा सा हम सोच समझ के डिसीजंस ले। सो इट्स बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन नेट पे एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग, ठीक है, व्हाट एल्स आई कैन डू सो दैट माई बेस पे, नॉट ओवरऑल सिटी, माई बेस पे will be this much. See, CTC is good to tell others. If you want external validation कि मैं सबको बताऊँ अरे मेरा 30 लाख पैकेज है, 40 लाख पैकेज है, it's good for showing off. But CTC is not good for you individually. Maybe for your ego, to satisfy your ego, but not for you individually, because CTC doesn't pay your bills. Only net package जो आपका net base पे है, that pay your bills. तो उसको compare करो, कहाँ पे मेरा base पे better होगा, इससे वो देखो. When you also negotiate in jobs while switching, आप base पे negotiate करो सबसे पहले वो fix हो जाए,
फिर बोलोगे अच्छा वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बिकॉज बेस पे अगर आपका अच्छा फिक्स हो गया है तो नेक्स्ट टाइम जो आप निगोशिएट करोगे इट विल बी ईजियर टू डिस्कस ऑन वेरिएबल्स। पर बेस पे इंक्रीज होने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है, अनलेस यू एन एक्सेलेंट परफॉर्मर, नॉट इवन अबव एवरेज और गुड परफॉर्मर इज नॉट गुड इनफ दीज, यू हैव टू बी एक्सेलेंट एट द टॉप ऑफ योर गेम, टॉप 1%, तो आपके बेस पे में कोई चेंज होगा। अदरवाइज आप फिर वेरिएबल से बात करें कि ठीक है लास्ट आपने मुझे 10% दिया, अब आप मुझे इस बार 20% दे दीजिए, वट इफ आई अचीव द टारगेट फॉर एग्जाम्पल, तो दे विल अग्री टू दैट कि ठीक है यार, नो लाइक दैट, ये हम कर सकते हैं। तो अगेन अनदर सोल्यूशन इज फोकस ऑन बेस पे, right, while switching negotiate on base pay and accordingly keep negotiating on your variables at the start of your career, right, ताकि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे you also have to focus on your performance और फर्स्ट 2 3 4 years में आप बहुत अच्छे हो जाओ अपने काम में, फिर उसके बाद जब भी बेस पे आप डबल ट्रिपल भी मांगो तो कोई आपको दे पाए, पर अगेन उसके लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, इट्स अ लॉन्ग गेम, डेफिनेटली करियर इज अ लॉन्ग गेम, 2 to 3 years तक तो हमें जनरली मोर और लेस सिमिलर सैलरी सबके जैसी दैट। ठीक है, दिस वॉज लाइक वन ऑफ द न्यूज अगेन वेयर वन लाइक देर वर रिक्रूटर्स जो कि IIM FMX एक्सेट्रा ऐसे लोगों को अनपेड रोल के लिए लाइक इनवाइट कर रहे थे, बिकॉज दे न्यू कि ठीक है कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हुई है, दैट लर्न एंड देन इफ यू डू वेल आफ्टर 2 months और आफ्टर 1 month देन विल स्टार्ट गिविंग यू सैलरी। दिस इज अ लिटिल आई वुड से unprofessional approach. Of course nobody needs to work for free, right? Nobody means nobody, including teachers. I know you expect एजुकेशन फील्ड टू वर्क फॉर फ्री फॉर यू, मुझे पता है एक्सपेक्टेशन है काफ़ी स्टूडेंट्स की, बट मुझे लगता है किसी को फ्री में काम नहीं करना चाहिए, हाँ एक अफोर्डेबल प्राइस डेफिनेटली रखना चाहिए। सो अनपेड ऑफर आ रहे हैं मतलब some people are assuming और they know कि placement situation is bad, isn't it? But एक और चीज़ समझो कि MBA field और MBA placements in terms are better than any other field। जैसे आप दूसरे मास्टर्स डिग्री करते हो उसमें कंपेरेटिवली MBA में अगर आप एवरेज भी हो तो आपकी एक ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाती है, बाकी जगह पर आप एवरेज हो तो उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगती है। तो ओवरऑल MBA प्लेसमेंट स्टिल स्लाइटली अबव देन अदर डिग्रीज, पर जो उसका लेवल था वो इधर आ गया, आप समझ, इट्स स्टिल बेटर बट स्टिल इट इज़ बेसिकली स्लाइटली लोअर देन बिफोर। तो MBA करने से एक आपका अच्छा पैकेज मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं, इट्स नॉट लाइक बेसिकली लाइक ड्रीम है जो कि गलत है एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली सिचुएशन इज बैड इन लास्ट 2 to 3 years एंड सिचुएशन कैन गेट बेटर ऑल्सो, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, isn't it? So students, just take away is our 3 things when we talk about ROI. This particular session was not about exposing truth, colleges and everything, but understanding, basically getting aware of what is the real situation right now, is MBA worth it or not, right? Secondly, whenever you're negotiating, whenever you're getting a salary or a package, where to look at and where not to look at, वो चीज़ हमें देखनी है, and accepting that good career, excellent career is always a long game. There's no shortcut to a very good career where you're standing with a good package जो बाकी लोगों से बहुत बेटर है, मतलब बाकी लोगों से आपको बहुत ही बेटर हार्ड वर्क करना है, you have to be much more sacrificial in nature. These were the just few examples to make you understand. So return on investment is just not on money, it is of your hard work, the hard work you put in while preparing these exams, aptitude exams, then the fees you pay for the college, the fees you pay to coaching centers, the fees you pay as for waiting list as token money कि मेरा हो जाएगा तो, या फिर ना कुछ like basically अगर आपका हो जाएगा तो ठीक है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा like that, otherwise they may or may not give you refund, ये सभी आपका इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ हम सोचते हैं कि कॉलेज में जो फीस पे करें दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, और वो चीज़ आपकी जस्टिफाई हो 3 months 6 months या 1 year का हार्ड वर्क इज़ नॉट इनफ। वो जस्टिफाई होने के लिए एवरी सिंगल स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स will have to work hard for 2 to 3 years straight. Just performing well in CAT is not enough, just performing in your IIM or whichever college you get is not enough, just performing again like after that in any internship or in first year job is not enough. It's a long 2 to 3 years of consistency which will actually give you a return on your investment. So I hope you have understood my point and you'll correct your perception towards your career, because as I said initially, this particular session was more solution oriented rather than blaming someone या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, प्रॉब्लम तो है, न्यू प्रॉब्लम्स विल कम नेक्स्ट ईयर, उसके बाद कुछ और कोई दूसरा कॉलेज का कुछ आएगा कंट्रोवर्सी, ठीक है, rather than wasting our time we have to now focus on कि कहाँ से हम बेस्ट कॉलेज होता है बेसिकली टॉप, जितना टॉप कॉलेज हो सके, और अगर मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला है तो देन आई हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। देन मुझे टॉप 10 नहीं मिले, मुझे न्यू IIM मिला है, मुझे tier 2 कॉलेज मिला है, then you have to work harder, that is something you have to accept, right students? So you can follow me, this is my Telegram channel, this is my Instagram, and thank you so much, see you soon in another video.